السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی راضی ہو۔ اور جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو پوری دیکھے، جس سے ان لوگوں کی مدد وہ کر سکے اور ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ خودکشی عام سی ہو رہی ہے۔ ہر ایک مہینے بہت سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ اس وجہ پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ محبت میں ناکامی اس سے کسی نے خودکشی کی۔ جتنا میں جانتا ہوں آج کل ویسی محبت کوئی نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرے۔ اب ان کا اپنا معیار ہے، وہ اپنے معیار سے سوچتے ہیں چلو کچھ کیسز میں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کی قلت۔ پیسوں کی قلت تو 90 کی دہائیوں میں بہت ہوئی تھی، جب 10-12 سال ایسے ہی ہڑتال رہا، بیچ میں ٹھیک ہوتا تھا، بیچ میں حالات خراب ہوتی تھی، تو تب بھی رہا، تب بھی لوگوں نے صبر کیا۔ 2009 میں بھی ہو گیا، 2010 میں بھی ہو گیا، 2014 میں سیلاب آیا تھا، 2016 کا تو سب کو معلوم ہی ہوگا، پھر 2019 کا، اب 2020 اور 2021 کا تو سب کو پتہ ہی ہے۔ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہم بس صبر کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم گھر سے ہی اپنا کام کریں اور آن لائن اپنے کام کو بہت سی جگہ پھیلائیں، جس سے ہم اچھا خاصا منافع کما سکیں۔ باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج کل آن لائن فراڈ ہو رہا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مجھے خود بھی لگتا ہے کہ یہ ایک مضبوط وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات یہ ہے۔ آن لائن فراڈ میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن فراڈ کا میں بس ایک انگریزی ٹرم ہوتی ہے جس کا نام ہم ہیکنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیکنگ کا مطلب بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیکنگ کا مطلب چوری ہو سکتا ہے۔ ہیکنگ کی اب کتنی قسمیں ہیں؟ اگر ہم ایسے بات کریں، ہیکنگ کی عموماً 3 قسمیں ہیں۔ ایک اس کی قسم ہے فشنگ اٹیک، دوسری اس کی قسم ہے سوشل انجینئرنگ، تیسری قسم ہے اس کی ٹروجن اٹیک۔ فشنگ، سوشل انجینئرنگ اور ٹروجن اٹیک۔ فشنگ کیا ہوتا ہے؟ فشنگ میں کوئی ایسی سائٹ بنائی جاتی ہے جو آپ کو بیچی جاتی ہے اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسس یا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ایکسس یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کا ایکسس چھینا جاتا ہے، جس میں آپ کو کچھ ایسی لالچ دی جاتی ہے جس سے آپ مائل ہو جاتے ہو اور اس لنک پہ کلک کرتے ہو اور پھر آپ کا اکاؤنٹ ہیکر کے پاس جاتا ہے۔ ہیکر سے مراد وہ فریبی ہے، وہ مکار ہے جو یہ جال بناتا ہے۔ اب سوال ہے سوشل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ سوشل انجینئرنگ کا مطلب بس اتنا ہے، سوشل انجینئرنگ کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی آدمی ایسی باتیں کرتا ہے جسے ہمیں بھروسہ ہوتا ہے اس پہ، اور جو وہ بولتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا یہاں فون آتے تھے، مطلب باہر کا کوئی بھی آدمی فون کرتا تھا، کہتا تھا میں بینک سے ہوں، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بند ہوا ہے، آپ فلاں ڈیٹیلز اے ٹی ایم کارڈ کے دے، پھر وہ اکاؤنٹ سے پیسے لے کے غائب ہو جاتا تھا۔ جس کے بعد پھر جے کے بینک والوں نے اور بہت
लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू किए। लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू नहीं किए, एक के साथ ऐसा हुआ जिसने वो देखा, उन्होंने 10 को बोला, जिससे वो 10 भी बच गए, फिर उन 10 ने और 100 को बोला। ऐसे ही ये कारवां चलता गया जिससे सब बचे अल्लाह के फजल से इससे। और इस सोशल इंजीनियरिंग का एक अटैक ये है जो कुछ दिन पहले जिसकी वीडियो में जिक्र किया गया था, एक भाई ने उसका जिक्र किया था। कुछ बाहर की लड़कियां यहाँ के लड़कों के साथ बात करती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं तमीज़ के दायरे में सबको समझाऊँ, क्योंकि और मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरे बड़े भी होंगे जो ये वीडियो देखते होंगे, और मेरी कुछ बहनें भी होंगी जो ये वीडियो देखते होंगे। मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ कि ये बात आपको समझाने में कि ये क्या होता है, असल में ये दरअसल ये क्या मसला है। तो वो कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे उस लड़के पे शहवत गालिब हो जाती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। फिर उनकी शर्मगाह की तस्वीरें उनके चेहरे के साथ मारती है, और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उन्हें 40,000, 50,000, 1 लाख ना दे वो वीडियो लीक करेंगी। अब जब वहाँ से 15-16 साल बच्चा होता है, या 22-23 साल एक जवान मर्द होता है, या 30 साल एक जवान मर्द होता है, उसकी हया पे ये बात नागवारा गुजरती है और वो खुदकुशी करता है। वो पैसे भी नहीं दे पाता, अगर वो पैसे देता भी है फिर भी उसके साथ ऐसा ही होता है। फिर भी उसकी और शर्मगाह की तस्वीर एक किसी फाहिश साइट पे भेज दी जाती है, या उसे वायरल की जाती है, जिससे उसकी हया को चोट पहुंचती है। अब सवाल है ट्रोजन अटैक का। ट्रोजन अटैक क्या है? ट्रोजन अटैक से मुराद एक ऐसी एप्लीकेशन है या फाइल है जो आप जब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन का एक्सेस उस आदमी के पास जाएगा जिसने आपको वो लिंक दी थी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की। उससे क्या होता है, जो ही आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उससे आपके फ़ोन का एक्सेस उस हैकर के हाथ में चला जाता है। वो आपकी तस्वीर कभी भी कहीं भी खींच सकता है। जैसे कि कोई भी लड़का है अपने घर वालों में बैठा है, वहाँ उसकी माँ होती है, बहन होती है, जिस तरह से मेरी भी माँ और बहन होती है। वो जो हैकर है वो उसकी बहन की भी फ़ोटो ले सकता है, उसकी माँ की भी फ़ोटो ले सकता है, फिर उसे ब्लैकमेल कर सकता है। या वो उस लड़के की खुद की फ़ोटो ले सकता है जब वो अपने कमरे में हो, क्योंकि एक कमरा हर एक इंसान अपनी मिल्कियत समझता है, जहाँ वो अपने कपड़े भी बाज़ दफ़ा बदलता है या अपने तरीके से बैठता है। तो वो हैकर उसकी वो तस्वीर खींचता है, उसकी शर्मगाह की तस्वीर खींचता है, या उसकी बहन की तस्वीर खींचता है, फिर उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो पैसे ना दे उसके साथ ऐसा होगा, अगर वो पैसे ना दे उसके साथ वो ऐसे ऐसे करेंगे, उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि उसकी शर्मगाह की फ़ोटो किसी फैश साइट पे बेची जाएगी, या उसकी बहन की फ़ोटो किसी फैश साइट पे बेची जाएगी। तो वो बेचारा मजबूर होकर खुदकुशी करता है। और इसमें कुछ लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। लड़कियों के साथ भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं माजरत चाहूँगा। ये लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है कि उन्हें लालच देते हैं कि आपको 100 रुपये मिलेगा या 1000 रुपये मिलेगा, आप फ़लाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। जो ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करती है, फिर उसके फ़ोन का एक्सेस उस हैकर के पास चला जाता है। फिर वो उनकी फहिश तस्वीरें खींचता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। और वो इतने ही में नहीं रुकता है। अगर कोई लड़का या लड़की अपना बैंक अकाउंट फ़ोन पे चला रहे हैं, जैसे आजकल चलाते हैं, जैसे आजकल इस दौर जदीद में सब
सब काम फ़ोन पे ही होते हैं, तो सब अपने अकाउंट फ़ोन पे ही चलाते हैं। जैसे इस दौर जदीद में सब अपने काम फ़ोन से ही करते हैं, कैशलेस जिसे हम कहते हैं, मतलब फ़ोन पे ही अपना बैंक अकाउंट एक्सेस किया, उससे किसी से भी हिसाब किताब किया, उससे वो किसी से भी हिसाब किताब कर सकते हैं। अपने फ़ोन पे ही बैंक अकाउंट एक्सेस करके किसी से भी हिसाब किताब कर सकते हैं। वो हैकर इस बात का भी फ़ायदा उठाता है, जब उसके पास उसके फ़ोन का एक्सेस होता है तो वो उनके अकाउंट से भी पैसे निकालता है और चोरी करता है। अब ये कैसे जाने कि किसी के फ़ोन को ट्रोजन अटैक हुआ है? मैं कुछ बातें बोलूँगा, अगर किसी को वो बातें लगती है अपने फ़ोन में, तो उसके फ़ोन को ट्रोजन अटैक हुआ है। नंबर 1, फ़ोन हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है। नंबर 2, फ़ोन में उतनी फाइल्स नहीं होती है, फिर भी फ़ोन बार बार हैंग होता है। नंबर 3, कुछ एप्लीकेशंस खुद ब खुद खुल जाती है। नंबर 4, अगर फ़ोन की बैटरी 4 घंटे देती है, उसके बाद वो 1.5 घंटा देती है। जब ऐसी चीज़ें हो तो क्या करें? ऐसी चीज़ें हो, आप फ़ोन को रेस्टोर करें। अगर तब भी ये सेम रिपीट हो, फिर आप किसी दुकानदार के पास फ़ोन को हार्ड रीसेट कराए। अब अगर कोई इस चीज़ का शिकार बन गया, वो क्या करे? सबसे पहले वो अपने घर वालों को सच सच बोले। अगर उसकी इंटीमेट पिक्स ली गई, उसकी शर्मगाह की पिक्स ली गई या किसी और चीज़ की पिक्स ली गई, फिर उसे मतलब धमकाया जाता हो कि अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे फिर ऐसा होगा, वो अपने घर वालों से बात करे। अगर ये मुनासिब ना हो, फिर वो जिस रिश्तेदार से खुल के बात कर पाता हो, जैसे चाचा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मामेरा भाई, जो भी हो, वो इससे इस चीज़ की मदद मांगे। अगर तब भी ये पॉसिबल नहीं है, अगर तब भी ये मुनासिब नहीं है, वो उनसे भी ये चीज़ नहीं शेयर कर सकता, फिर वो किसी मुफ्ती के पास जाए, किसी आलिम के पास जाए या मोहल्ले के किसी हेड के पास जाए, उससे ये बोले। और मैं गुजारिश करता हूँ सबके वालिदैन से और सब बड़ों से कि वो सब्र से काम ले, इस बच्चे को प्यार से समझाए। इस बेचारे ने धोखा खाया है, तो आप इसे अपने तरीके से समझाइए। ये ना हो कि कोई बच्चा किसी बाप को बोले कि मेरे साथ ऐसे धोखा हुआ है, वो बाप वहाँ से उसे थप्पड़ मारे कि तेरे साथ क्यों धोखा हो गया है। सबके साथ धोखा होता है, सबके साथ अपने अपने वक्त में धोखा हुआ होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सब वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को समझाए कि इस चीज़ से दूर रहे। ये नहीं कि उन पे ज़बरदस्ती करे, ज़ोर ज़बरदस्ती करे, नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बस उन्हें ये समझाए कि अगर ऐसा हो गया है फिर इससे कैसे निकला जाए। नंबर 2, अगर ये सब करने के बाद आप एक काम करें, आप साइबर सिक्योरिटी सेल में FIR काटें, जिससे उस हैकर को वो ट्रैक करेंगे और फिर उस हैकर को सज़ा मिले। नंबर 3, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम उलमा से, तमाम मुफ्तियों से, तमाम काजी साहिबान से, जिस तरह वो अपने इल्म से रोशनास सारी आवाम को करती है, इसी तरह वो इस बात पे भी रोशनी डाले कि अगर ऐसा होता है फिर वो क्या करे। वो इस बात में भी आवाम की रहनुमाई करे, हम उनके शुक्रगुजार होंगे। बाकी वस्सलाम।